billion in reserves to be used as and when the need arises. We will have no hesitation in using our reserves when appropriate to reduce volatility in the rupee. Once market volatility settles down, India should emerge once again as an investment destination of choice. Now, as Ms. Bhattacharya said, in this environment, there is both challenge and opportunity. Challenge because the world will not provide the strong and supportive growth that we had in the past decade. Opportunity because global capital is looking for investment opportunities, and what better place than India today. As I said last year in my Bharat Ram lecture entitled Make in India, Largely for India, to implement the Prime Minister's vision of producing in India at a time when trade across the world is falling, we will have to strengthen the domestic market so as to absorb much of the increased production until such time as the global economy recovers. This means we have to increase domestic demand while avoiding the booms and busts that typically plague such efforts by emerging markets. My focus in today's talk will be on what the RBI is doing to help the government create the conditions for sustainable growth. Now, structural reforms will help strengthen this growth. 2 weeks ago, as many have said, the government announced Indradhanush. I should mention that the RBI has been working with the government all along the way, contrary to some newspaper reports. The fact that we weren't on the podium is just because these are government banks, and the government has a right to announce what it does with government banks, but that is not to say that we haven't been working with the government. Last week, we licensed new payment banks. Next month, we will license new small finance banks. In fact, this morning, as I was coming down Marine Drive, or Dr. Netaji Subhash Chandra Bose Marg, I saw a hoarding for Bandhan Bank, the first new bank for over 10 years. I think that was a wonderful sign to start today. In November, we will announce the providers of the TRED system who will be licensed at that point. There are lots of changes happening in the system. Indeed, this entire conference is focused on the timely issue of technology in banking, which is bringing about a revolution in how the industry accesses, transacts, and supports the customer. In fact, we're going to try and move more of customer redress also onto the electronic platforms. But given the times, given the state of the markets, I want to focus on macroeconomic issues because I think they're very important at such times to reassure the markets that we have the macroeconomic problems under control. And I want to leave the structural changes that are really the focus of this conference to a future speech. Let me start by saying we've come a long way since the difficulties in 2012-13, primarily as a result of actions taken by the government and regulators. However, 3 areas are still work in progress from our perspective. First, I agree with Dr. Jyotsna Suri in saying that economic growth is still below levels that the country is capable of. Second, while consumer price inflation has moderated, inflation expectations amongst the public are still high, creating a gap between the real rates that the savers in your banks expect and the rates that corporations think they pay. Third, stressed assets in the financial system continue to be high, which holds back growth and new lending, even while dampening bank incentives to cut base rates. So therefore, our short-term priorities, the short-term priorities of the Reserve Bank are very clear. We need to help growth by bringing down inflation in line with the proposed glide path, thus creating room for the monetary easing that Dr. Suri desires, and I think much of industry desires. And second, we have to work with the government and banks on speeding up the resolution of distressed projects and cleaning up bank balance sheets so banks are capable of lending in a big way again to the major projects that the country is embarking on. Let me start first with inflation.
Now, of course, I'm sure that many of you, these cameras, don't want to hear me talk about the theory of inflation. They want me to say what I'm going to do next on policy. So for that, I think the best summary is still our last policy statement, from which I quote, and I quote, "Significant uncertainty will be resolved in the coming months, including the likely persistence of recent inflationary pressures, the full monsoon outturn, as well as possible Federal Reserve actions. As the Reserve Bank awaits greater transmission of its front-loaded past actions, it will monitor developments for emerging room for more accommodation." So I end quote there. I have said all I want to say on future policy, and please don't read anything in what follows about the future direction of policy. We will, of course, take all the information we've had so far, as well as the information we will get in determining that policy. But I want to explain what we've been doing and why we've been doing it, because ultimately, control of inflation has political overtones. It is something the public has to understand, has to be appreciative of for it to succeed. And that's why I want to make the case for why this is so important today, apart from the fact that low inflation is something that our foreign investors are extremely interested in. It is something that has been at the root of what the public in India also wants, and I want to make the case once again. Now, again and again, we enunciate this mantra that the poor are hardest hit by inflation. Yet, despite this known antipathy in India towards inflation, we've had more than 9% inflation on average between 2006 and 2013. 9% inflation for a country that purports to dislike inflation. The longer we had high inflation, the more the public's expectations of inflation became entrenched at high numbers. And because the public's expectations are adaptive, meaning they change only after they see a sustained change in realized inflation, we required a long period of low inflation before expectations came down. Unfortunately, our focus in the past on WPI inflation, which typically puts more weight on international traded goods like commodities rather than domestically non-traded goods like education and healthcare, domestically produced non-traded goods like education and healthcare. This meant that when international inflation came down, the clamor for rate cuts increased. So we often did not take the fight to domestic sources of inflation. Put in technical terms, the policy rate was below the neutral real rate for years, and that coincided with a strong pickup in CPI inflation. Things can change, and things are changing. The strong disinflation, even deflation in the world in the last few years, gives us a golden opportunity to do so. What better time than the current for an inflation-prone country like India to bring its inflation finally in line with the world's? With commodity prices declining and astute food management by the government, part of our work is done for us without India having to undergo the extreme demand compression that was seen, for example, in the United States during the Volcker disinflation. Indeed, today, with real expected policy interest rates in the 1.25 to 1.5% range, and approximately at the neutral range for perhaps the first time in a long while, and with real after-tax deposit interest rates barely positive, it would be hard to argue that the disinflationary glide path the RBI... नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आरबीआई गवर्नर यहां पर बातचीत करते हुए उन्होंने जो की बातें बोली हैं वो ये कि पहले तो भारतीय इकोनॉमी काफी बेहतर है बाकी इमर्जिंग मार्केट से, तो अब जबकि फंड्स डिप्लॉय करने होंगे तो डेफिनेटली भारतीय इकोनॉमी पर सबकी नजर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि रुपये में जो वॉलेटिलिटी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उनके पास इनफ फंड्स हैं। सो बेसिकली इंडिया विल डेफिनेटली बी अ गुड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स और
ऑल्सो वो रुपए को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अभी भी एड्रेस करने हैं। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, भारतीय इकोनॉमी में उम्मीद से या फिर जितनी संभावनाएं हैं उससे कम है। दूसरी बात, उन्हें लगता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अभी हाई है और उसको मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरी बात, स्ट्रेस्ड असेट्स पर जरूर जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। लेकिन अब हम कमोडिटी बाजार पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे 6 साल पहले पहुंच चुके हैं, क्योंकि 6 साल के लोअर लेवल पे आपको दिखाई देगा कॉपर और साथ में एल्यूमिनियम भी 6 ईयर लोज पर है। कच्चा तेल 6.5 साल के लोएस्ट लेवल पर फिलहाल खुला है, करीब 1.5% का दबाव वहां पर। अगर आप बेस मेटल्स पर ध्यान दें तो जितने भी बेस मेटल्स हैं बहुत स्टीप हिट पड़ा है। निकल आप नजर डालिए 3.5% का दबाव 650 रुपए पर आ गया है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 300 रुपए का यहां पर नुकसान हो चुका है। कॉपर में भी अच्छा खासा दबाव 2.5% नीचे। सोना जरूर आप देख सकते हैं, उम्मीद यही थी कि थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन जितनी ज्यादा आप एक्सपेक्ट करें कि इतने खराब माहौल में ट्रेड करें उतना ज्यादा भी मूव नहीं आया है, लेकिन अब भी 27,000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो वो एक बड़ा जंप। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ऊपरी लेवल पर, और उसके बाद भी 1160 के से थोड़ा सा नीचे है, 1158 पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। तो एक बड़ा जंप पिछले 2-3 हफ्तों में सोने में आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से पूरी ग्लोबल इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या स्टीप करेक्शन देख रहे हैं, उसका फायदा सोने को मिलता हुआ। लेकिन हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे IIFL के निर्मल जैन। हमारे साथ बने रहिए और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल सिंह जी। और बाजार में है तेज गिरावट का माहौल, और इस बाजार की गिरावट पर और आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और देश के लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज में से एक IIFL के चेयरमैन निर्मल जैन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, और सबसे पहले शुक्रिया आपका इस खास और बड़े दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिस वक्त बाजार को वाकई में आपकी आवाज और आपके डायरेक्शन की जरूरत है। ये बताएं कि जो कुछ भी दुनिया भर के बाजारों में हो रहा है, कितना असर हिंदुस्तान पर और पड़ना बाकी है? हिंदुस्तान पर असर तो पड़ा ही है, और हिंदुस्तान अब बाजारों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितनी वहां पे अगर दुनिया के बाजारों में और गिरावट आती है और वॉलिटिलिटी होती है तो यहाँ पर असर भी होगा। हमने देखा पहले जब एशियन क्राइसिस हुआ था, उसके बाद जब यूएस में क्राइसिस हुआ, फिर यूरोपियन क्राइसिस हुआ, जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो इंडिया पे एक बार असर तो जरूर आता है। पर एक और चीज है जो कि अगर जब एक बार जो डस्ट सेटल होती है, क्राइसिस से रिकवर होते हैं, तो इंडिया बहुत ही जल्दी और बहुत स्ट्रांगली रिकवर कर जाता है, क्योंकि रिलेटिवली स्पीकिंग जो हमारी इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग है, अंदरूनी ताकत है उसमें, उसकी जो डिपेंडेंस है फॉरेन डेट पे वो कम है, और उसकी जो डिपेंडेंस है कमोडिटीज पे वो भी बहुत कम है। क्योंकि जो क्राइसिस है उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कमोडिटीज प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। चाइना में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और जो करेंसी की वीकनेस है उससे जो असर पड़ा है, उससे भी कमोडिटी के भाव पर बहुत असर पड़ा है। पर उसके बावजूद अगर आप जब अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह की हलचल होती रहेगी इस मार्केट में। पर अगर आप पेशेंस रखें और इस क्राइसिस को एक बार पार करें तो वही अच्छी सलाह होगी। बिल्कुल, मैं आपसे थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टर्स के लिए राय भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले 1-2 मुद्दे हैं जिस पर वाकई में मैं डिटेल में जानना चाहता हूं। क्या इस बार के जो चीन की वजह से जो ये संकट शुरू हुआ है, कमोडिटी प्राइसेस के क्रैश और ग्रोथ को लेकर जो चिंताएं बन रही, क्या इसे 2008 के संकट के सामने कंपेयर करना ठीक है, या फिर हालात इस बार उतने बुरे नहीं हैं, और जो लोगों को सबसे ज्यादा डर ये लग रहा है कहीं 2008 जैसी मंदी फिर से शुरू ना हो जाए? ये कहना बहुत मुश्किल है, पर जहां तक अब 2 चीजें हैं इसमें। एक तो 2008 की जो ग्लोबल सिचुएशन थी और दूसरी जो इंडिया की अंदरूनी हालात थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इंटरनली अब ज्यादा स्ट्रांग है, और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें जो रिवाइवल के काफी अच्छे आसार हमें मिल रहे हैं, और जो हमारी पोजीशन है इस समय वो 2008 से काफी स्ट्रांग है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो इस समय बहुत कम है, उससे जो दबाव है हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट पर या करेंसी पर वो रिलेटिवली कम है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक इंडिया का सवाल है वो शायद हालात उतने नाजुक नहीं बने जितने 2008 में हो चुके थे।
पर फिर भी जैसा मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर ग्लोबल मार्केट में इतना बड़ा क्राइसिस आता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया अछूता नहीं रहेगा, थोड़ा असर तो उसमें पड़ेगा ही। करेंसी हमारी लोग बोलते हैं कि ओवर वैल्यूड है, थोड़ा डेप्रिशिएट हो तो अच्छी बात ही है, ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं, लेकिन जिस स्पीड से और जिस वजह से रुपया गिर रहा है, क्या वो चिंता की बात है? और किन लेवल के नीचे आपको लगता है रुपया जाए तो फिर ज्यादा बाजार को दिक्कत होगी? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है कि क्या फिर अगर करेंसी इस तरह से कमजोर होती है, ग्लोबल मार्केट्स इस तरह से कमजोर रहते हैं, तो फिर क्या आरबीआई गवर्नर से उम्मीद करना गलत होगा कि वो 29 सितंबर या उससे पहले रेट कट करें? रुपये में गिरावट जरूर आई है, मगर जो अगर दूसरी इमर्जिंग मार्केट और दुनिया की हालात देखें तो उसको देखते हुए ये हालत इतनी खराब नहीं है। मतलब ऐसा कोई क्रैश नहीं हुआ है रुपये में। थोड़ा जो 4-5% की गिरावट है अगर, तो उतनी गिरावट तो मतलब इस तरह के मार्केट में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि रुपया जो है वो पहले के मुकाबले अब इतना नाजुक नहीं है, क्योंकि हमारा रिजर्व काफी स्ट्रांग है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम है, इसलिए दबाव कम है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन चले, पर मैं नहीं समझता हूं कि रुपया यहां से एकदम ही गुड़क जाएगा या आपको जैसे 5-10% या 15% जैसा क्रैश है वो देखने को मिलेगा। वैसे हालात नहीं है। अगर आप जो 2008 में या 2011-12 में जो हालात थे उस समय प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो इस समय रुपया काफी मेरे ख्याल से दुनिया के हालात को देखते हुए काफी होल्ड कर रहा है और काफी ठीक ही है। तो इतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं है इस समय। तो जब आप कह रहे हैं कि दुनिया भर के मुकाबले में हम थोड़ी बेहतर सिचुएशन में, तो ये बेहतर सिचुएशन क्या इकोनॉमिक हालात की वजह से दिख रही है या फिर मोदी सरकार के कामकाज की वजह से कि 5 क्वार्टर हो गए उनकी सरकार को और अभी भी क्या किसी तरह की बाजार प्रीमियम देने को तैयार है? बाजार में कुछ प्रीमियम था और अब जो है वो कुछ हमारी इकोनॉमी की जो दूसरे जो फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ के स्टॉक मार्केट में कमोडिटी स्टॉक इतने ज्यादा नहीं है, यहाँ की डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, और उसके अलावा अब ये जो ग्रोथ का यहाँ पे सिनेरियो है, क्योंकि पहले जो था चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री थी, मगर अब बड़ी इकोनॉमी में ऐसा लगता है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उभर के आएगी। तो और यहाँ के डेमोग्राफिक सिचुएशन भी हमारी अच्छी है, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पिछले क्राइसिस में भी अगर हमने देखा 2008 में, 2010 या 12 में, तब भी इंडिया काफी जल्दी रिकवर हुआ था। तो इंडियन इकोनॉमी की इंटरनल स्ट्रेंथ है। चूंकि आप जो हमारे देश में घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनमें से इंस्टीट्यूशनल बिजनेस करने वालों में सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस में से एक हैं, ये बताएं क्या सेंस आपको एफआईएस के फ्लोज से मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं शुक्रवार को भी हमने देखा भारी भरकम बिकवाली हुई है, पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का ही माहौल उनका है। क्या ये लगता है कि एफआईएस का सेलिंग प्रेशर इस तरह से बरकरार रहेगा, इन लेवल्स पर भी रहेगा? और दूसरी बात है कि एक जो बड़ा डर है कि ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ होता है तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या फिर इमर्जिंग मार्केट से रिलेटेड जो फंड्स हैं उनमें रिडम्पशन प्रेशर आएगा, तो क्या वो दिक्कत फ्लोज के लिहाज से अभी भी और बढ़ सकती है हमारे लिए? इंडिया में जहां तक फ्लोज का सवाल है, अगर बिकवाली हुई है और वो आंकड़े तो आप रोज देख ही सकते हो, बहुत बार क्या होता है कि जो इमर्जिंग मार्केट फंड है इनमें रिडम्पशन आता है, क्योंकि ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट होते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और जब पैनिक होता है तो वो भी रिडम्पशन करते हैं, तो ये मजबूरन स्टॉक बेचने पड़ते हैं, उसमें उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती है। पर जैसे एक बार सेंटीमेंट थोड़ा ठीक हो जाता है तो रिडम्पशन बंद हो जाते हैं और कभी कभी नई बाइंग भी आती है। तो इस तरह के मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर वापस बाउंस बैक आता है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से एक ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। तो ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट रहेंगे। पर जहां तक फ्लो का सवाल है, अगर इस समय जो सेंटीमेंट है वो उसमें अगर देखते हुए तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है और उसका असर इंडिया पे भी पड़ रहा है। जो इंडिया में भी जो पैसा है जो एफआईएस ने लगाया है, अगर उन पर रिडम्पशन है तो उन्हें मजबूरन कुछ स्टॉक बेचने पड़ते हैं। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही, थोड़ी सी मार्जिन प्रेशर्स की, जो हमने पिछले हफ्ते कुछ कमजोर क्वालिटी के शेयरों में आते हुए देखा। आज चूंकि अब 11 बजे बाद पेन होगा, क्या आपको लगता है क्या बाजार में लीवरेज पोजीशन अब भी हैं, काफी ज्यादा है, और क्या इनके कम होने का खतरा, चाहे वो मार्जिन फंडिंग वाली पोजीशन हो या फिर वायदा कारोबार वाली पोजीशन हो, क्या वो रिस्क बरकरार है? थोड़ा और अनवाइंडिंग प्रेशर आ सकता है उसके चलते? तो 2008 या पहले के मुकाबले में अब मार्जिन पोजीशन काफी मतलब बेटर है। मार्जिन फंडिंग जो है बहुत कम है, क्योंकि इसमें सेबी और आरबीआई दोनों के जो
रेगुलेटरी मूव्स थे उससे अब काफी फायदा होगा लोगों को, क्योंकि पहले सभी ने इसके ऊपर बहुत ही क्लैम डाउन किया। उन्होंने एक तरफ प्रोमोटर्स को मजबूर किया कि उनके प्लेस शेयर को डिस्क्लोज करो ताकि लोगों को पता रहे कि कितने रिस्क है, और दूसरी तरफ जो मार्जिन फंडिंग के रूल्स उनको टाइट किया। उसके अलावा आरबीआई ने भी एक लिस्ट जारी की कि आप सिर्फ इन्हीं स्टॉक में फंड कर सकते हैं, और वो भी 50% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए लगता है कि मतलब इक्का दुक्का स्टॉक हो सकता है कि चपेट में आ जाए, पर उसके अलावा कोई मार्केट वाइड या सिस्टमिक रिस्क का इस समय मार्जिन फंडिंग की वजह से तो मुझे नहीं दिखता है। पर जो एफआईआईज की सेलिंग है उसका असर होगा, पर जैसे ही सेंटिमेंट ठीक होगा तो काफी तेजी से रिकवर हो जाएगा। एक चीज जो आपसे जानना चाहता हूँ, जनरली हम ट्रेडर्स की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म मूव्स की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह के फॉल होते हैं तभी शायद निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका भी होता है। लेकिन क्या जो कॉन्फिडेंस हम जनरली स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस की संकट के चलते फॉल होता था, बड़े ताल ठोक के कहते थे कि अब तो खरीदारी कर लीजिए, वापस जब सुधरेगा तब हम ही आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बढ़ेंगे, क्या वही कॉन्फिडेंस आज भी? क्योंकि इस बार दिक्कत चाइना की है और चाइना बहुत बड़ा है जिससे यूएस भी डर रहा है, तो क्या उतना ही कॉन्फिडेंस 8,000 के लेवल पर आज भी है खरीदारी करने का? नहीं, इस समय का क्राइसिस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा 2-4 दिन देखिए कि हालात किस तरह से यहां से बदलते हैं। पर उतना नहीं है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसे आज नहीं तो 1-2 दिन के अंदर आपको फिर एक तरह का, या 2-4 दिन में जब अगर किस तरह से हालात यहां से बनते हैं वो देखना चाहिए। पर जहां तक मेरा पर्सनल इंट्यूटिव असेसमेंट है, मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों की बात है और उसके बाद सिचुएशन काफी संभल जाएगी। क्या यहां से कितना और करेक्ट हो जाए तो आप ये मानेंगे कि निवेशकों के लिए बाजार काफी आकर्षक है? मतलब ये करेक्शन के अलावा में बाजार में जो न्यूज आती है, जो चाइना किस तरह से उसको रिएक्ट करता है, ग्लोबल मार्केट्स और पर्टिकुलरली अमेरिका किस तरह से इस सिचुएशन को रिएक्ट करता है, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। निर्मल जी, क्रूड को लेकर हम बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे और ये लगता था कि बड़ा फायदे वाली बात है, क्रूड गिर रहा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। $110-115 से $50 तक आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन $50 के नीचे हम 40 और 35 पर आ रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है? ग्लोबल मंदी की चपेट में आकर इक्विटी मार्केट और उसका नुकसान हम ज्यादा करेंगे बजाय इकोनॉमिक फायदे के, और क्या अब आपको डायरेक्शन दिख रहा है उस लिहाज से? और क्रूड को लेकर क्या स्ट्रेटेजी, क्या फायदे नुकसान आपको नजर आ रहे हैं बाजारों के लिहाज से? बाजार जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उसका जो असर है थोड़े दिनों का होगा, पर अगर आप लंबे समय के लिए देखिए, अगले 5 या 10 सालों के लिए, तो जो क्रूड अगर इस तरह से $40 या $50 पे रहता है उसका बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि पिछले 5, 7 या 10 सालों की तुलना में जो अगर कंट्री में अगर इस तरह की बचत होती है जो कि $50, $60, $70 बिलियन हर साल की, तो उसका फायदा इकोनॉमी पे जरूर होगा, और मैं समझता हूं कि मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है। निर्मल जी, एक और जहां रुपए में थोड़ी कमजोरी हो रही है, वो फायदा देने वाली बात है खासतौर से ऐसी कंपनियों के लिए, ऐसे सेक्टर्स के लिए जो एक्सपोर्ट पर काफी आधारित है। दूसरी ओर दुनिया भर के बाजारों में मंदी का जो माहौल या इकोनॉमीज में मंदी का माहौल है, इन सबके बीच में क्या आपको लगता है कि आईटी शेयर, फार्मा शेयर एक अच्छा मौका दे रहे हैं निवेश करने का? क्या आप बुलिश रहेंगे वहां पर? हाँ, मैं समझता हूँ कि आईटी और फार्मा शेयर में एक मौका अच्छा होगा, क्योंकि अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो इन स्टॉक्स को फायदा होगा। तो इसमें भी जो वेल मैनेज कंपनीज है जिनका पोर्टफोलियो ठीक है, हो सकता है कि डॉलर अर्निंग्स इतनी तेजी से नहीं बढ़े, पर जहां तक मैं समझता हूँ कि मार्जिन है उसमें काफी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। और इस तरह के माहौल में ये सेक्टर्स काफी रेजिलियंट है, और ये सेक्टर में पैसा जो है वो क्योंकि दूसरे सेक्टर जब अनअट्रैक्टिव लगते हैं तो इन सेक्टर्स में पैसा जाता है, तो हो सकते हैं ये सेक्टर्स फिलहाल कुछ समय के लिए अच्छे होंगे। और अगर गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर पैसे का फ्लो तेजी से बढ़ता है तो हम कुछ वहां पे भी रिवाइवल देखेंगे। एक शब्द का इस्तेमाल किया निर्मल जी की, वेल मैनेज कंपनीज। ऐसे में फिर मैं आपसे राय ये लेना चाहता हूं कि इस तरह के फॉल में क्या फिर सेंसेक्स निफ्टी वाली या फिर लार्ज के दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाना ज्यादा सही, ज्यादा सेफ है करेक्शन के बाद, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वेंचर करना चाहिए? किस तरह से निवेशकों को आप राय देंगे? तो निवेशक अगर छोटे निवेशक है तो म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाइए, और अगर आप मार्केट समझते हैं तो लार्ज कैप रिलेटिवली सेफर है। अगर मिड कैप में, मतलब आपकी जो रिसर्च है मिड कैप में कम से कम आपको 5 गुना ज्यादा रिसर्च करनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे समझना है कि स्टॉक और कंपनी ठीक है, और स्मॉल कैप में। और अगर लार्ज कैप में रिलेटिवली एक बार अगर कुछ गलत न्यूज है तो मार्केट में काफी तेजी से आ जाती है, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि वो कंपनी में कुछ अगर कोई बात ठीक नहीं है। पर जो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा ज्यादा समय लगता है,
तो मिड कैप में भी जो अच्छी कंपनियां हैं, काफी अच्छी कंपनियां होगी मिड कैप में भी, पर उसमें आपको थोड़ा सतर्क और ध्यान देने की जरूरत है। जब आपने एक बात कही कि हिंदुस्तान की सिचुएशन बेहतर है दूसरी दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में, उनकी इकोनॉमी के मुकाबले में, तो फिर क्या ऐसे सेक्टर आप पसंद करेंगे जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के कंजम्पशन पर आधारित है? यदि हाँ, तो फिर वो कौन से सेक्टर्स, थीम्स हैं जो आपको निवेश के लिहाज से फिर अच्छे लगते हैं? ऑटो सेक्टर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये पेट्रोल और डीजल के भाव कम होते हैं तो, और अगर इकोनॉमी में रिवाइवल होता है और कुछ समय में अगर इंटरेस्ट रेट कट भी होता है, तो इन सब चीजों का फायदा इस सेक्टर को मिलता है। और उसके अलावा जो एफएमसीजी सेक्टर्स के भाव काफी बढ़े हुए हैं, पर अगर एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। फाइनली राय यहाँ पर एक आपसे ट्रेडर्स के लिए भी लेना चाहता हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि पैनिक जैसा, बहुत डर जैसा माहौल है। दोनों तरह के लोग, क्योंकि आप अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल कारोबार भी करते हैं, रिटेल एचएनआई का भी आपका बड़ा कारोबार है, दोनों तीनों तरह के लोगों के लिए आपकी क्या राय है इस तरह के बाजार में? पैनिक मत करो, लिवरेज को कम रखो, क्योंकि यहां से बाजार कहां जाएगा उसका अंदाज लगाना असंभव है। तो आप एक बार अपने लिवरेज को कम रखो और पैनिक मत करो। अगर आपके पास अपने पैसे से स्टॉक लगा हुआ है तो होल्ड करो, और अब इतनी गिरते हुए बाजार में थोड़ा आराम से समय दो, और उसके बाद देखो बाजार कहां पे जाकर स्थिर होते हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए आज इस खास दिन वक्त निकालकर जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे निर्मल जैन, आईआईएफएल के चेयरमैन, जो बताते हुए कि पैनिक ना करें, लेकिन अलर्ट रहें, सावधान रहें, नजर रखें बाजार पर, स्क्रीन पर, और नया निवेश करने के पहले दिग्गजों पर फोकस करें। और अगर मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं करेक्शन के बाद, तो ज्यादा सावधान से, ज्यादा पढ़ लिख और समझ कर लगाएं। लेकिन इस बीच बाजार पर रखिए नजर। फिर से 8000 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी, लगभग 300 अंकों का क्रैक, 950 अंक नीचे सेंसेक्स, और वो भी तब जबकि रुपए में कुछ रिकवरी दिखी है लोअर लेवल से, तो रुपया थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा। 1% का जो नुकसान था करेंसी मार्केट में, घटकर 0.5% का रहा, लेकिन उसके बावजूद बाजार में रिकवरी नहीं दिख रही। जो 66 रुपए 50 पैसे के आसपास के लेवल हमने रुपए में देखे, तो 15 पैसे की रिकवरी लोअर लेवल से करेंसी मार्केट में जरूर आई, लेकिन इक्विटी मार्केट के हालात खराब है। और 11 बजे के आसपास नजर रखिए, जब पेन होगा तो देखना होगा कि किस तरह की सिचुएशन फंड फ्लो को लेकर आगे बनती है, किस तरह से पोजीशन कम या ज्यादा होती हुई नजर आती है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। नजर रहेगी हमारी बाजार पर, बने रहिए। आप देख रहे हैं सौदा आपका। एक बार नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल चिंताओं से बाजार में मातम, सेंसेक्स 1000 अंक तक टूटा, निफ्टी ने तोड़ा 8000 का स्तर, बैंक निफ्टी में 4.5% की तेज गिरावट। दो साल के निचले स्तर पर आया रुपया, डॉलर के मुकाबले 66 रुपए 47 के स्तर पर शुक्रवार को 65.82 पर हुआ था बंद। Always the speculation of when and which way the US Fed will act, and it's obvious we have now learned to live in troubled times. ग्लोबल बाजार में अनिश्चितता के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली को भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा, कहा ग्लोबल हालात से मुकाबले के लिए तैयार है भारत। एक दशक से ज्यादा के बाद देश में खुला नया प्राइवेट बैंक, बंधन बैंक ने 501 ब्रांच के साथ शुरू किया कारोबार, छोटे और मझोले उद्यमियों को बढ़ावा देने की कोशिश। और आईओसी में आज ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बेचेगी 10% हिस्सेदारी, फ्लोर प्राइस 387 रुपीज, 9,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बाजार पर नजर, तो दिन के लोएस्ट पॉइंट पर इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 7,965 पर आ चुका है, 332 पॉइंट्स की गिरावट। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा और ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की गिरावट है। सेंसेक्स में 1080 पॉइंट्स नीचे लोएस्ट लेवल पर फिलहाल हम ट्रेड करते हुए। मिड कैप्स का भी हाल काफी ज्यादा बुरा है, 4.6% का दबाव वहां पर, और बैंक निफ्टी अब 5% से ज्यादा का दबाव देख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पर अगर ध्यान दें तो गेल, बीएचईएल, वेदांता, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, ये सारे स्टॉक्स प्रेशर में हैं। इंटरेस्टिंग होगा आईओसी देखना, किस तरह से आईओसी में फिलहाल कारोबार हो रहा है।
क्योंकि मांग करिए आज जब इतना बड़ा दिन है, जब हम इतना ज्यादा सेल ऑफ देख रहे हैं, आईओसी को ऑफ ऑफ सेल खुला हुआ है, वो भी 10% हिस्सेदारी तारीख के लिए, तो इट्स नॉट गोइंग टू बैक, 3% नीचे ट्रेड करता हुआ। लेकिन कुछ छोटे काउंटर्स पर नजर डालते हैं जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। एसकेएस माइक्रो 10% का दबाव, डीएलएफ 8% नीचे, आईएफसीआई 7.5%, एनएचपीसी 8%, बैंक ऑफ इंडिया 7.5 पौने 8% नीचे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 7% का दबाव। वहां पर ये स्टॉक्स वो जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ दबाव देख रहे हैं। वोल्टास, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सूज़लॉन एनर्जी 23 रुपए पर, और एसबीआई पर नजर डालिए, इतना बड़ा बैंक और वहां पर 5% का कट एक दिन में 255 रुपए पर आ चुका है। लेकिन अब हमारे साथ आज के एक्सपर्ट, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और जियोजीत बीएनपी पारिवारिक फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी गौरांग शाह जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश, पहले आपसे समझ लेते हैं, सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? कुछ सपोर्ट दिख भी रहा है या नहीं? गुड मॉर्निंग मुग्धा, डेफिनेटली सपोर्ट दिख रहा है। नीचे में 7940 का एक क्रिटिकल सपोर्ट है। निफ्टी हालांकि ऊपर से एक ब्रेकडाउन दिखाया है निफ्टी ने 8315 के लेवल को। शुक्रवार के सेशन में मुग्धा निफ्टी ने इन स्तरों को गैप के साथ ब्रीच करा था, और डाउनसाइड टारगेट्स मुझे लगता है जो उस पैटर्न ब्रेकडाउन के थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है जिस स्तरों पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी ये ओवरसोल्ड है और मीडियम टर्म के नजरिए से भी ओवरसोल्ड है। फ्रेश बाइंग को भी अवॉइड करना चाहिए, बट फ्रेश शॉर्ट सेलिंग इन स्तरों पर, निचले स्तरों पर अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। निफ्टी के लिए नीचे में 7940 का एक क्रिटिकल सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी में मौजूदा स्तरों से कोई बहुत बड़ी गिरावट कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगी। बीच में डेफिनेटली पुल बैक देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से 2 दिन से गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इन स्तरों पर शॉर्ट्स नहीं करने चाहिए। ओके, तो अभी शॉर्ट्स ही करने की सलाह है राकेश की तरफ से। लेकिन गौरांग, चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी के अपने इंटरनल फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आफ्टर ऑल इंडिया इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, तो ऐसे में इस वक्त क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि इतनी गिरावट है, कहीं मौका ढूंढा जाए खरीदारी करने की इस भरोसे पर कि वित्त मंत्री हो या आरबीआई गवर्नर, सब यही कह रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द ब्राइट स्पॉट? शुक्रिया मुग्धा और सुप्रभात आपको। पहले तो मेरा ये मानना है कि ये जो भूकंप आया है चाइना में, चाहे वो चाइना के शेयर बाजार को लेकर के हो या फिर चाइना की मुद्रा को लेकर के हो, उस भूकंप से मेरे ख्याल से हम दूर नहीं रह सकते, और ना ही जो विश्व भर के बाजार है वो दूर रह सकते हैं, क्योंकि हम एक हिस्सा है वो विश्व बाजार का, और खास करके इमर्जिंग मार्केट का। अब जिस प्रकार से तकलीफ खड़ी हुई है और जिस प्रकार से बिकवाली हुई, जाहिर है छोटी मध्यम अवधि के जो भी कारोबारी है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, उनको ज्यादा चिंता और फिक्र करने की जरूरत है। लंबी अवधि के नजरिए से जो भी निवेश करते हैं या जो भी निवेशित है, उनको मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बात की चिंता या फिक्र करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और अगर आपने दिग्गजों में ध्यान रख करके कुछ चुनिंदा क्षेत्र में निवेश किया है, तो अगर आपके पूंजी आपको अगर इतनी सहूलियत देती है कि आप और अगर निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उन सब सिलेक्टिव दिग्गजों में निवेश करना चाहिए। तीसरी बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है मुग्धा, वो है कि इस प्रकार की जो गिरावट हमने देखी है, तो जितनी भी लिवरेज पोजीशन बाजार में है, अगर मार्क टू मार्केट मार्जिन्स नहीं भर पाए, तो वो सब पोजीशंस फोर्स लिक्विडेट होगी, जिसके कारण एक आखिरी जो कट होता है, एक फाइनल कट जिसे हम कहते हैं, वो बाजार में आपको शायद दिख सकता है, वो आज या कल तक दिख सकता है। लेकिन ये सब कहने के बाद मैं ये मानता हूं कि जब भी हम उभरेंगे, जब भी ये सब उठापटक थोड़ी धीमी पड़ेगी, जब भी जो धुंधलापन है वो दूर होगा, तो हमारा बाजार और हमारी मुद्रा सबसे पहले रुझान आपको सकारात्मक देंगे, और मुझे लग रहा है कि रिकवरी भी आपको सबसे पहले यहाँ दिखेगी। तो अगर आप कारोबारी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, तो आपको चिंता करनी चाहिए। अगर आप निवेशक है और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो आपको निश्चिंत होना चाहिए। और अगर आपकी पूंजी आपको निवेश के लिए रियायत देती है, तो आपको निवेश चुनिंदा सेक्टर्स और दिग्गजों में ध्यान में रखते हुए बढ़ाना चाहिए।
चलिए, आज सबसे मुश्किल दिन है शायद ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा स्टीप कट सारे ही स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत ही खराब है, एडवांसेस का तो नामो निशान है ही नहीं। लेकिन इसीलिए आपकी मदद करने के लिए, आप ट्रेडर्स की मदद करने के लिए हम इस वक्त ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आए हैं। हमारा ये शो आप जैसे उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको अपने ट्रेड पर अभी एक्शन लेना है। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-2097-890 पर कॉल कर सकते हैं। तो हमारी हॉटलाइंस खुली हैं। पहला सवाल लेते हैं, बैंगलोर से अश्विन का सवाल है। नमस्कार अश्विन, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। मेरे पास MRPL का 2000 शेयर्स है। आई हैव बॉट इट एट 80 रुपीज। और मेरे पास आरकाम का भी शेयर्स 5000 है, 67 रुपीज 70 पैसे में लिया था। क्या मैं ये होल्ड करूं या एवरेज करूं या बेच दूं? आई कैन वेट फॉर 1 ईयर, नो प्रॉब्लम। ओके, आप यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे थे? 67-70। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे थे या फिर ट्रेडिंग का नजरिया था? लॉन्ग टर्म। ओके। गौरांग MRPL 80 के प्राइस पर, रिलायंस कम्युनिकेशन 67.70, ऑलमोस्ट 68 रुपीज का प्राइस। देखिए, MRPL पर तो मुग्धा हमारी कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन पर मेरी ही राय में अगर इस स्तर पर नहीं, उछाल पर बेचे, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि रिकवरी आपको देखने मिल सकती है बाजारों में, वो शायद आज या कल या परसों के दिन आपको देखने मिले, तो उस रिकवरी का आपको फायदा उठाना चाहिए। या फिर आप इस स्तर पर बेच करके अगर सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में ही निवेशित रहना चाहते हैं तो हमारी राय में बेहतर विकल्प है आइडिया सेल्यूलर और भारती एयरटेल। मुझे नहीं पता 5000 क्वांटिटी इन्होंने क्या सोच रख करके इतनी बड़ी पूंजी एक ही स्टॉक में लगा दी। आपको पहले तो राय है कि आपको कभी भी इतना बड़ा निवेश एक ही सेक्टर या फिर स्टॉक में नहीं करना चाहिए, फैलाना चाहिए आपके निवेश को। और दूसरी है कि इस स्तर पर या उछाल पर बेचे, और अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में ही निवेशित रहना है तो एज अ डिस्क्लोजर 230 का लक्ष्य हमने आइडिया सेल्यूलर पर निर्धारित किया है 1 साल या 1.5 साल के नजरिए से, और भारतीय एयरटेल पर हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 500 रुपया का है, वो भी इसी समय सीमा से 1.5 साल के नजरिए से। ओके, तो आपके लिए सलाह ये है कि जब बाजार एक बार बाउंस दिखाएगा तो आप अपने लेवल्स के आसपास रिलायंस कम्युनिकेशन से निकलने की कोशिश करिए। इसी स्पेस में, टेलीकॉम स्पेस में, गौरांग को आइडिया सेल्यूलर और भारतीय एयरटेल भी बेहतर पसंद है। आइडिया सेल्यूलर ज्यादा पसंद है, 230 का टारगेट है वहां पर, और भारतीय एयरटेल में 500 का टारगेट है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन से एग्जिट करने की सलाह है। दूसरा सवाल आपका MRPL पर था। राकेश, MRPL 80 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है, चार्ट्स क्या बता रहे हैं? अगले 1 साल ये रुक सकते हैं? मुग्धा, अगर हम चार्ट्स देखें तो चार्ट्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं है। स्टॉक ने नीचे से एक रैली दिखाई थी और उस रैली के पीक में इन्होंने अराउंड 80 रुपीज के अराउंड स्टॉक को खरीदा है। काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, समय सीमा भी इनकी अच्छी है, बट मैंने इनको ज्यादा देर रुकने की सलाह नहीं दूंगा। मेरा ऐसा मानना है इस स्तरों पे तो नहीं, बट किसी भी उछाल पे स्टॉक का पोटेंशियल है। 74-75 के स्तरों तक इजीली रैली ले सकता है। किसी भी रैली में 74-75 रुपीज के अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और मैंने राय दूंगा यहां से अगर निकलते हैं, अगर इसी स्पेस में रहना है, PSU में, रिफाइनरीज में रहना है, तो मेरे को लगता है कि BPCL, SPCL, IOC एक बेहतरीन विकल्प है। 74-75 के अराउंड किसी भी रैली में निकलने की कोशिश करें, और उस पैसे को अगर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में लगाते हैं तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये सलाह है आपके लिए, निकलने की कोशिश करिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस वक्त बेटर बेट हो सकती है, लेकिन हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक। और अगर आपको अपने स्टॉक्स पर कोई भी सवाल पूछना है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं इस वक्त। 1800-2097-890 हमारा नंबर है, तुरंत फोन करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ये बताने की कि इस वक्त इस खराब बाजार में आपको अपने स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अशोक जुड़ रहे हैं। नमस्कार अशोक जी, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो मैडम, मैं सिप्ला के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पास 720 के रेट में 100 शेयर रखे हुए हैं, तो आगे मेरे को कैसे स्ट्रेटेजी? के रेट में 720। 720, ओके।
आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर लॉन्ग टर्म नजरिया है? लॉन्ग टर्म के लिए था। ठीक है। गौरांग, सिप्ला 720 के लेवल पर उन्होंने खरीदा हुआ है, क्या सलाह देंगे आप? एक ऊपरी स्तर बिल्कुल है मुग्धा, और नजरिया लंबी अवधि का इनका मौजूदा स्तर पर या फिर और थोड़ी बहुत गिरावट आती है और इनके पास पूंजी है तो ये आधी क्वांटिटी एवरेज भी कर सकते हैं। ये गिरावट में और जिस प्रकार से बाजार का वातावरण है और रुपए में जिस तरीके से हमने कमजोरी देखी है, इसका एक सकारात्मक सा रुझान आप आईटी और फार्मा सेक्टर पर आने वाले समय में देखेंगे और नतीजे भी काफी सकारात्मक आए थे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा इनको, और अगर ये एवरेज कर सके तो आधी क्वांटिटी एवरेज करे, वरना होल्ड करे। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेंगे। अब पालघर से नवीन का सवाल है। नमस्कार नवीन, बताइए सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नवीन दवे, मैं पालघर नाला सोपारा से बात कर रहा हूँ। मैंने 50 शेयर मैंने अरविंदो फार्मा के लिए हुए हैं 784 के भाव से, वो मुझे रखना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल मेरा ये था कि अभी मुझे 60-70 हजार रुपया कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो किस उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ओके, गौरांग आपसे ये सवाल लेना होगा क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, 784 का प्राइस 775 पर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही ये भी समझना चाहते हैं कि इनके पास और फंड्स हैं, क्या ये सही वक्त होगा निवेश करने के लिए? क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, पहले तो आप ये देखिए मुग्धा के बाजार में शुक्रवार को तीव्र गिरावट आई और आज उससे भी ज्यादा तीव्र गिरावट है, लेकिन ये स्टॉक अरविंदो फार्मा का और फार्मा और आईटी रिलेटेड सेक्टर अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो या तो संभले हुए हैं या फिर ज्यादा गिरावट नहीं देखी है। तो आप निश्चिंत रहें। इतनी तीव्र गिरावट जब सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरा है तो आपका 785 785 वाला स्टॉक महज 5 या 10 या 15 रुपये नीचे 774 के आसपास काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ पर बने रहें। एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है। जो 60-70 हजार रुपया ये और निवेश करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये एक बेहतर मौका है इनको शेयर बाजार में निवेश करने के लिए लंबी अवधि के नजरिए से। जैसे अभी मैं नजरिया प्रोग्राम की शुरुआत के आपके सामने रख रहा था, तो मैं ये मानता हूं कि हाँ, निवेशकों को एक बेहतर मौका है। और क्योंकि इनके पास फार्मा स्टॉक ऑलरेडी है, तो मैं इनको ये राय दूंगा कि आप आईटी क्षेत्र को चुनें, और आईटी क्षेत्र में अगर आपको निवेश करना है तो आप इन्फोसिस जैसी कंपनी को चुने। हाल ही में हमने हमारे जो लक्ष्य थे वो करीबन 1350 तक बढ़ाए हैं, और एक बेहतर मौका है यहाँ पर नतीजों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले जिस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज होगी आईटी सेक्टर को लेकर के, और ये रुपये डॉलर का इक्वेशन एक महफूज मेरे ख्याल से नजरिया खड़ा करता है आईटी सेक्टर के ऊपर। तो आईटी सेक्टर को ध्यान में रखें और जो आपके पास 60 या 70 हजार है वो इन्फोसिस में लगा दें आप। तो ये सलाह है आपके लिए। आप अरविंदो फार्मा पे चिंता मत करिए, इतने खराब बाजार में भी काफी होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स, तो यहाँ पर और बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद आप कर सकते हैं। और बाकी जो फंड्स हैं आप आईटी सेक्टर में लगा सकते हैं, और आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली इन्फोसिस पसंद है गौरांग को। चलिए लेंगे अब अगला सवाल। अहमदाबाद से रजनीकांत जी का सवाल है। नमस्कार रजनीकांत जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी बताइए। हेलो मैडम, मैंने लिया है एनएमडीसी 103 रुपए पे। हेलो जी जी बताइए, सब आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मैंने एनएमडीसी लिया है 103 रुपए में 50 शेयर। और ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं? मैंने लॉन्ग टर्म में लिया है, मेरा एवरेज किया हुआ है ये। ओके, इसके अलावा भी कोई सवाल था आपके पास? हाँ जी, मेरा 3i इन्फो है, अभी लिया है 400 शेयर। हेलो जी जी, 3i इन्फो लिया है 112 रुपए में लिया है खाली। हेलो जी ओके, यहाँ पर ट्रेडिंग का नजरिया है? नहीं नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म ही है। ओके गौरांग, एनएमडीसी एंड 3i इन्फो 12 रुपए पे लिया हुआ है स्टॉक, 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, कंपनी पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है, और अगर आप 12 रुपए का स्टॉक मौजूदा स्तर 3 या 4 रुपए तक आप इंतजार करते हैं और 400 शेयर है आपके पास, तो आपकी पूंजी कितनी कम होगी, ये कितना बड़ा नुकसान होगा, ये तो देखिए आप। पता नहीं आपने क्या देख करके यहाँ पर निवेश किया है। जितनी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल लीजिए, वरना जो बचा कुचा है वो भी चला जाएगा आपका। जहां तक एनएमडीसी का दूसरा मेरे ख्याल से सवाल था मुग्धा इनका, तो
धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और धातु क्षेत्र मेरे ख्याल से बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति में, और वहां पर भी अगर आप नजरिया लेकर के चले तो मुझे बहुत जल्द रिकवरी नजर नहीं आती, चाहे वो स्थानीय खपत को लेकर के या फिर एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के। दोनों ही स्टॉक में अगर आप निकलना चाहता है तो निकल लीजिए। हमारी राय में आइंदा अगर आप निवेश करते हैं तो दिग्गजों में ध्यान में रखें। मिसाल के तौर पर आईटी में हमने इन्फोसिस का जिक्र किया, वहां पर HCL, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां हमें पसंद है। फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, ल्यूपिन हमारी पसंदगी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में BPCL, HPCL ये प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। उसके पश्चात IOC और ऑटो एंसिलरीज और ऑटो, ऐसे छोटे मझौले स्टॉक में भी हर्षदा, आप देखिए मुग्धा के किस प्रकार से तीव्र गिरावट आई है और किस प्रकार से लोग फंसे हुए यहाँ पर, और यहाँ से निकलने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। गिरावट होने के लिए समय नहीं लगता है, लेकिन रिकवरी को बहुत लंबा समय लगता है। तो प्लीज आप जरा सावधान रहें ऐसे सब स्टॉक में। ओके, क्योंकि 3i में बिकवाली की सलाह है, राकेश आपसे समझना चाहूंगी चार्ट्स क्या कुछ दिखा रहे हैं? आज के बाजार में तो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्या कुछ दिखा रहे हैं कि थोड़े बेहतर प्राइसेस इनको मिल सकते हैं? देखिए मुग्धा, चार्ट्स क्लियरली नेगेटिव हैं, रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है। कंटिन्यूसली ये स्टॉक सेल ऑन रैली वाला स्टॉक रहा है। मेरा मानना है इन स्तरों पर या उछाल पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इन स्तरों पर बिल्कुल भी किसी तरीके की एवरेजिंग या नई बाइंग से बिल्कुल बचना चाहिए। ओके, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स की ये सलाह है कि जल्द से जल्द आप 3i इन्फोटेक से निकलिए, क्योंकि वहां पर आपको नुकसान और ज्यादा हो सकता है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि हर रैली पर बेचा जाना चाहिए, यहां पर एवरेज करने की सलाह भी नहीं है। और गौरांग की सलाह NMDC पर भी यही है कि मेटल क्षेत्र, मेटल और धातु से रिलेटेड क्षेत्र और मेटल और धातु क्षेत्र सब पर ही अगले कुछ दिन तक लगातार दबाव रहने वाला है। अगर आप आज के भी कारोबार में देखें तो जितने भी दिग्गज 52 वीक लोज पर हैं वो ज्यादातर मेटल, धातु या फिर कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो सलाह आपके लिए यह है कि आप इन दोनों ही स्टॉक से निकलिए। बेहतर स्टॉक्स अवेलेबल हैं, IT स्पेस ज्यादा पसंद आ रहा है गौरांग को इस वक्त, आप वहां पर निवेश करिए। चलिए हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों पर सलाह लेकर आएंगे आपके लिए। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। चलेंगे अब हरियाणा। प्रवीण जी का सवाल है। नमस्कार प्रवीण, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैम, मेरे दो स्टॉक हैं, आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट और SBI। तो मौजूदा लेवल पर क्या इनमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा? आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है या आप निवेश करना चाहते हैं? नहीं मैम, निवेश करना है मैम। ओके, 2 से 3 साल। ठीक है। क्या सलाह होगी यहाँ पर गौरांग आपकी तरफ से SBI और आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स? मुग्धा, आज तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है कि जो भी आप बात कर रहे हैं निवेशकों से वो लंबी अवधि का नजरिया लेकर के चलते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसी गिरावट में एक बहुत ही बेहतर मौका होता है निवेश करने के लिए, जिसका जिक्र मैं आई थिंक ट्रेडर्स आहलूवालिया पे no, traders are too busy with the calculator calculating the loss, I think. No, but on the light, क्या लेना है? जी हाँ, बट मेरी सहानुभूति है उनसे, क्योंकि बहुत बुरे फंस जाते हैं लोग, और खास करके आप जब लिवरेज करके पैसा बाजार में लगाते हैं। तो बहरहाल आहलूवालिया कंस्ट्रक्शन पे तो हमारी कवरेज नहीं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो इनका सवाल था वहां पर मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपको एक बेहतर मौका है निवेश करने के लिए। और तवज्जो अगर आप देना चाहें तो हमारी तरफ से ये भी राय होगी आपको कि आप अहमियत दे निजी बैंक्स को। मिसाल के तौर पर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, यहाँ पर नतीजों को लेकर के और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि मुनाफों को लेकर के भी आपको एक बेहतर रुझान मिल सकता है। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं, अन्यथा निजी बैंक्स को चुन सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए इस वक्त गौरांग की तरफ से। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट भी लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
A lot has been done and a lot more needs to be done. When Vajpayee ji was the Prime Minister, a Department of Northeast was created. It was then decided that a defined percentage of our budgets will necessarily have to be spent by every ministry on the Northeast. Two initiatives by the Honorable Prime Minister, obviously the recent peace initiative and also the settlement of land issues, boundary issues pending with Bangladesh. The first, of course, is a great step to restore peace and normalcy. And the second, if things go well, which I am sure they would, will geographically also bring Northeast closer to the rest of the country and make life easier in those regions. The government under the Honorable Prime Minister is fully determined. So we are closely watching कि आज वित्त मंत्री क्या बोल रहे हैं। फिलहाल वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन चलिए CNBC आवाज पर चल रहे ITL के महामुकाबले में पिछले हफ्ते के विनर्स कौन रहे हैं, आइए जानते हैं। ट्रेडर्स लीग में संदीप ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, 227% का रिटर्न, और सौरभ और सूरज दोनों अपने रिटर्न्स को दोगुने से ज्यादा बढ़ा चुके हैं। लेकिन वहीं विमेंस लीग में नेहा श्याम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, 75% से ज्यादा 76% के रिटर्न्स वो लेकर आई हैं। अगर कमोडिटी लीग में देखें तो वहां पर संजय कुमार मंडल उन्होंने 74% का रिटर्न कमाया है। वीरेश मोहन का रिटर्न भी काफी अच्छा और हरीश कुमार भी 44% के रिटर्न्स के साथ। इस वक्त बात करते हैं संदीप के साथ। हमारे साथ पिछले हफ्ते के ट्रेडर्स लीग के विजेता चंद्रपुर महाराष्ट्र के संदीप देहारकर जुड़ रहे हैं। संदीप, स्वागत है आपका। पहले तो अभी तक पिछले हफ्ते आपने बहुत बढ़िया रिटर्न कमाया है, कहां से मदद मिली, क्या चीजें आपने ध्यान में रखी, और साथ ही आज इस वक्त क्योंकि आप एक ऑलमोस्ट इंस्पिरेशन होंगे काफी सारे लोगों के लिए, आज का बाजार जब इतना खराब है तब आप क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? या मैडम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली तब मैं तो ग्लोबल क्ल्यूज जो आ रहे थे, नेगेटिव क्ल्यूज, और चाइना मार्केट जिस प्रकार से क्लैश हो रहा था, मतलब नीचे आ रहा था, तो मैंने निफ्टी का जो पुट था वो बाय किया था मैंने 8300 में। जब वो 8550 चल रहा था तब एट द रेट ऑफ 19 रुपीज में उसको बाय किया था और सेल किया मैंने उसको 58 पे सेल कर दिया था। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी और पुट्स खरीद रहे हैं या फिर लगता है कि ये बाजार कुछ ज्यादा ही? जी बताइए। 2 दिन वेट करूंगा मैडम, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है जिस प्रकार से ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, मार्केट में नेगेटिविटी बनी है, और तो मैं सोचता हूँ कि और ये 7900 में तक आ सकता है मार्केट और नीचे, तो उस समय का वेट करूंगा और फिर बाद में और कॉल या पुट में जिस तरह से मैं बाय या फिर सेल कर सकता हूँ। ओके, तो अभी फिलहाल आप थोड़ा दूर हैं बाजार से, लेकिन आपको बता दें संदीप काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि इसके पहले वो कमोडिटी लीग के विजेता भी रह चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें ITL के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। आपको इसके लिए www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करना है। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, आप शेयर के जरिए भी रख सकते हैं। ITL में बड़े से बड़े ट्रेड पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। अब चलेंगे पालमपुर, जहां से विनोद ने हमें सवाल भेजा है। नमस्कार विनोद, बताइए सवाल क्या है आपका? मैम, मैंने 360 के खरीदे हैं, 100 लेवल पर के 100 शेयर 349 के भाव के खरीदे हैं, तो ये अब क्या करना चाहिए मैम? आप लॉन्ग टर्म में निवेश रखें या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं? हाँ जी, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं।
ओके। राकेश, क्या सलाह होगी? शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा 360 के भाव पे खरीदा है और शोभा 349 के भाव पर। देखिए मुग्धा, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा की बात करें 360 के भाव पे खरीदा है और आज के स्तर में एक गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में निचले स्तरों पे देखें तो 320 322 एक सपोर्ट है। टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर 6-7 महीने का व्यू बना के भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक से, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से किसी भी पुल बैक पे इनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और जो दूसरा इनका स्टॉक है शोभा, इसके अंदर भी देखें मुग्धा, कितनी बार ऐसा लगता है स्टॉक के अंदर बेस बन रहा है बट हर बार वो बेस टूट जाता है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। फॉर द टाइमिंग तो स्टॉक में गिरावट चल रही है। निचले स्तरों पर 260 के अराउंड एक सपोर्ट आता है। बट मेरा ऐसा मानना है अगर रियलिटी के अंदर ही रहना है तो दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। किसी भी पुल बैक रैली में शोभा से निकलें। अगर रियल एस्टेट के अंदर ही रहना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी अच्छा लगता है, ओबराय रियलिटी काफी अच्छा लगता है। यहां से स्विच करें गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबराय रियलिटी के अंदर। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। औरंगाबाद से अभिजीत का सवाल है। नमस्कार अभिजीत, बताइए क्या सवाल है? हाँ मैम, मैं हीरो होंडा मोटो कॉप के 50 शेयर्स लिए 2700 से, और बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल लिया है मैम 2 आज ऑप्शन में। क्या है आपका प्राइस वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में? बैंक ऑफ बड़ौदा 200 का कॉल लिया है मैम। 200 का कॉल लिया है, ओके। राकेश, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। 200 का कॉल लिया हुआ है इन्होंने, क्या करे ये? देखिए मुग्धा, आज ही खरीदा है। स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है अगर इनको कॉल पुट के कॉल्स में ही बाइंग करनी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि पुल बैक रैली को खेलना है तो निफ्टी में जो पुल बैक है वो फास्ट देखने को मिलेगा। निफ्टी जिस फैशन में गिरा है आज के सत्र में, मुझे लगता नहीं है कि ऑनगोइंग डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो एक पुल बैक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अभी उस कॉल में मुझे नहीं लगता है इनको नुकसान हो रहा होगा। अगर कॉल की पोजीशन लेनी है तो मुझे लगता है निफ्टी की इनको कॉल खरीदनी चाहिए 8100 की। ओके, और साथ ही हीरो मोटो कॉप पे आपका क्या व्यू है? 2700 के भाव पर वो खरीदा हुआ है। देखिए मुग्धा, हीरो मोटर कॉप में आज के सत्र में ही पहले गिरावट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली थी। ऑटो स्पेस में ही अगर कुछ लेना है तो मारुति, जिसमें आज बहुत समय बाद गिरावट देखने को मिली है, और दूसरा स्टॉक अशोक लीलैंड, ये दोनों स्टॉक्स काफी टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। अगर ऑटो के अंदर ही कुछ ट्रेडिंग के नजरिए से या निवेश के नजरिए से पोजीशन लेनी है तो मेरी टॉप पिक मारुति रहेगी, फॉलोड बाय अशोक लीलैंड। यहां से पैसे को स्विच करें मारुति और अशोक लीलैंड के अंदर। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प से ज्यादा भरोसा है मारुति और अशोक लेलैंड पर, आप उन स्टॉक्स पर दाव लगा सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। भावनगर गुजरात से भरत का फोन है। नमस्कार भरत, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। हाँ, आपने रिलायंस का लिया था वो 1004 रुपये में। ओके, कम हुआ तो वो दाम आएगा। अंबुजा का लिया था। दूसरा सवाल आपका अंबुजा सीमेंट पर है। हाँ, अंबुजा सीमेंट। किस प्राइस पे लिया है आपने? 248 रुपये में। ओके, क्या आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या फिर ट्रेडिंग का नजरिया है? तो नहीं लेने का है। माफ कीजिएगा, आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है या फिर लंबी अवधि का निवेश है? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अभी तो डाउन है तो वो दाम आएगा दिन में इसे। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ में अंबुजा सीमेंट। गौरांग, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1004 के भाव पे लिया है, काफी नीचे आ चुका है इनके भाव से, क्या करेंगे? देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर है कि दोनों पर ही हमारी पॉजिटिव कवरेज है, और अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो बेझिझक यहाँ पर बने रहें, और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो और भी जोड़ सकते हैं। छोटी मध्यम अवधि के लिए मेरे ख्याल से काफी परिस्थिति चिंताजनक है उन सब कारोबारी को, या फिर छोटी या मध्यम अवधि के लिए जो निवेश करते हैं उनके लिए, जिस प्रकार से परिस्थिति खड़ी है अपने सामने।
तो मेरी राय में अगर नजरिया लंबी अवधि का है, साल 1.5 साल का नजरिया है, तो निवेशित रहे और आप एवरेज भी कर सकते हैं। छोटी अवधि के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। और ये राकेश, आपसे भी एक बार व्यू लेना चाहेंगे यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स पर। आपसे व्यू लेने से पहले आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो टीवी 18 का चैनल है। टीवी 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। राकेश, आपका व्यू क्या है अंबुजा सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? मुग्धा, अंबुजा सीमेंट देखें तो मैं नतमस्तक होकर के रानी मां को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं और रानी मां का जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहे। देश की एकता, अखंडितता बरकरार रखते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को हम कैसे पार करते चले हैं, उन सपनों को जिन्होंने संजोया था उनमें एक रानी मां भी थी। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी। राकेश, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ा था। आप बता रहे थे अंबुजा सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपना व्यू। देखिए मुग्धा, अंबुजा सीमेंट एक बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। इसमें शॉर्ट टर्म नजरिया नहीं बनाना चाहिए। नीचे में 200 रुपए स्टॉक का एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और किसी कारण से स्टॉक 200 रुपए के अराउंड आता है, फर्दर डिक्लाइन अगर स्टॉक में 10-15 रुपए का आता है तो मुझे लगता है एक अच्छे लेवल्स हैं निवेश के नजरिए से। 6-8 महीने के लिए ट्रेडिंग पोजीशन भी ली जा सकती है। दूसरा, रिलायंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट मार्केट की गिरावट में स्टॉक इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। बट नीचे में 800 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया इन स्तरों पे नहीं बनाना चाहिए। स्टॉक 2 दिन से गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला है और गिरावट देखने को मिली है। अगर गिरावट बढ़ती है और निवेश लायक पूंजी है तो मुझे लगता है कि एवरेजिंग करनी चाहिए। 800 रुपए मुझे लगता है एक बेस है और ऑनगोइंग डिक्लाइन में मुझे नहीं लगता है कि 800 के लेवल स्टॉक नीचे में तोड़ेगा। तो ये सलाह है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबुजा सीमेंट पर। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। इस वक्त अगला कॉलर लेते हैं, कोलकाता चलेंगे जहां से सुधा ने हमें फोन किया है। नमस्कार सुधा, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार सर। मैम मेरा ना नीतीश स्टेट पे था और फेडरल बैंक पे था मैम। फेडरल बैंक 76 में लिए 100 शेयर और नीतीश स्टेट 19 रुपये 70 पैसे में 300 शेयर है। क्या करें इसमें? इसके अलावा भी आप एक सवाल पूछना चाहती थी आईपीओ पर? हाँ मैम, होगा आईपीओ पर। मैंने अभी आज खुल रहा है तो अच्छा होगा तो फिर इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है। फेडरल बैंक 76 के प्राइस पे दिया हुआ है। सुधा, एक सवाल और आपसे, क्या आप ट्रेडिंग कर रही हैं या फिर निवेश कर रही हैं? नहीं मैम, ऐसे 1-1.5 साल 2 साल का नीचे रखते हैं सर मैम। ठीक है। गौरांग, आपसे सवाल लेंगे। फेडरल बैंक इन्होंने 76 के भाव पे लिया हुआ है और नीतीश स्टेट भी खरीदा हुआ है 19 रुपये 70 पैसे पर। देखिए, बैंकिंग सेक्टर पर तो हमारा नजरिया निजी बैंक्स जिस साल के तौर पर एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये हमें ज्यादा पसंद लगते हैं। और मेरे ख्याल से फेडरल बैंक पर बड़े तौर पर हमारा जो लक्ष्य था वो तो हासिल हो चुका है। तो अगर ये यहाँ से बदलना चाहे तो इन सब निजी बैंक में बदले, ये ज्यादा बेहतर होगा। इनका नजरिया लंबी अवधि का है, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक बात। दूसरा सवाल कौन सा स्टॉक था? सॉरी, मुझे याद नहीं। नीतीश स्टेट 300 शेयर खरीदे हैं 19 रुपये 70 पैसे पर। अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट सेक्टर पर हमारी कवरेज जो है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, शोभा डेवलपर और ओबरा रियलिटी। इनकी बैलेंस शीट्स काफी अच्छी है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी काफी बेहतर है और डेट बिल्कुल न के बराबर या फिर जीरो है।
तो हमारी पसंदगी ये रहेगी। और जो आईपीओ पर इनका सवाल था, वेल एज अ डिस्क्लोजर हमने सब्सक्रिप्शन की राय दी है, लेकिन नजरिया आप लंबी अवधि का रखें ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस प्रकार के बाजार में मेरे ख्याल से आईपीओस को लेकर के काफी सवालिया निशान उठते हैं। सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग पर फायदा होगा या नहीं, तो ये काफी कुछ सवाल या निशान है। लेकिन हाँ, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है। लेकिन राकेश और गौरांग, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। जाने से पहले राकेश, आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? थैंक यू मुग्धा। मुग्धा, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, जिनको रिकमेंड करा है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। गौरांग, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? बहुत बहुत शुक्रिया मुग्धा। जिन भी स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में हमने आज बात की है, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। गौरांग और राकेश, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन के स्पेशल एडिशन में अभी के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कमोडिटी बाजार में कोहराम सा मचा हुआ है। क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप में।